we will start with Philippians chapter 2 today. आज हम फिलिपियों की अध्याय 2 से शुरुआत करेंगे। So it starts with the phrase, that first sentence starts with if therefore. So it's better we go to the last two verses of chapter 1. तो यहाँ पे फिलिपियों की पहला जो वाक्य है उसकी शुरुआत होती है सो यदि, इसलिए अच्छा होगा कि हम फिलिपियों के पहले अध्याय के आखिरी 2 वचन की ओर जाएं। So in chapter 1 verse 29 and 30 it's written, for to you it has been granted for Christ's sake not only to believe in him but also to suffer for his sake, experiencing the same conflict which you saw in me and now hear to be in me. फिलिपियों पहला अध्याय उसका 29 और 30 वचन, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। So Paul is in prison, Roman prison now. तो पौलुस जो है अभी रोमा के कारागृह में है, And he is encouraging the Philippine Christians, saying that we have not only believe in him, trust him, but also we have got the privilege to suffer for his name. तो यहाँ पे वो जो है फिलिपियों के विश्वासियों को ये प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हमें सिर्फ विश्वास ही नहीं करना है परंतु हमें उसके लिए दुख भी उठाना है। Many times when we walk in the way of Christ, we have to encounter many sufferings from worldly people and from even from some religious people. जब हम प्रभु के साथ चल रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस दुनिया के लोगों के द्वारा भी कष्ट होता है, हो सकता है, या तो फिर धार्मिक लोगों के द्वारा भी क्लेश भोगना पड़ता है। But we have to remember that when we think of suffering, sometimes we get somewhat discouraged. जब हम क्लेश उठाने के बारे में सोचते हैं तो कई बार हम निराश हो जाते हैं। But that's why he is telling in verse 1 that if he's asking this question, if there is any encouragement in Christ, if there इसलिए is any consolation of love, if there is any fellowship of the Spirit, if any affection and compassion. तो इसीलिए हम देखते हैं कि प्रेरित जो है यहाँ पे पहले अध्याय में एक सवाल करते हैं, सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। See, we can see this particular phrase, in Christ. That is a great theme of Paul's letters. तो यहाँ पे जो हम शब्द देखते हैं जो कि है मसीह में, ये जो है पौलुस की पत्रियों का एक मुख्य विषय रहा है। See, to be in Christ is the basic reality of salvation. देखिए, मसीह में बने रहना जो है उद्धार पाने का एक बुनियादी वास्तविकता है। To be in Christ is to be safe from the power of sin. मसीह में बने रहने का मतलब ये है कि पाप के सामर्थ से बचाया जाना। It is to have an intimate relationship with Jesus Christ. यीशु मसीह के साथ एक बहुत ही नजदीकी रिश्ते में रहना है। It is from that relationship the 5 things written here flow into our Christian life. उसी रिश्ते के द्वारा यहाँ पे जो लिखी हुई जो 5 चीजें हैं वो हमारे मसीही जीवन में बहता है। Encouragement in Christ, consolation of love, fellowship of the Spirit, affection and compassion. मसीह में शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया। See, I just want to show you one portion in Romans 8. There's a very important portion in chapter 8, verse 1 and 2. मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि है रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में पहले और दूसरा वचन। Before that, see, the best way we can explain in Christ is think of a branch in a tree. तो उससे पहले मसीह में रहने का जो स्पष्टीकरण है वो हमें इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जैसे कि एक पेड़ है और उसकी टहनियां होती है। See, we are in the first floor. I'm at present sitting in the first floor of a building.
मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है इमारत के दूसरे No, मंजिल पर I'm बैठे I'm हैं। sitting at मैं present in the मैं first अभी floor. जो हूँ इमारत के दूसरे फ्लोर पे बैठा हूँ। See, we have got a branch of a mango tree just in front of our balcony. देखिए तो हमारे बालकनी के सामने ही आम के पेड़ का एक टहनी है। See, what happens is in the what happens is whenever this that particular branch is full of mangoes, that branch literally comes down to the balcony. We can almost with the hand pluck the mangoes. देखिए होता ऐसा है कि जब वो टहनी में पूरा आम जो है लग जाता है, भर जाता है, तो वो टहनी जो है हमारी बालकनी में इतना झुका हुआ रहता है कि हम अपने हाथों से ही उस जो कैरी है उसे तोड़ सकते हैं। Many times I thought that branch is speaking to me some wonderful messages. कई बार मैंने ये सोचा है कि वो जो टहनी है वो मुझसे कुछ अद्भुत से संदेशों के द्वारा बात कर रहा है। Think of that particular branch in that tree, it is remaining in the tree. The sap of the tree flows to it, and due to it, it is so fresh and it produces some 30-40 mangoes in that particular branch. हम देख सकते हैं कि वो जो पेड़ में ही वो टहनी लगा हुआ है और उस टहनी को उस पेड़ से जो है जितना भी पोषण है वो मिलता है, उसके द्वारा वो फलवंत होकर 30 या 40 आम तक उसमें उत्पन्न कर पाता है वो। See, what we are called to do, as we read in John chapter 15:3, is to abide in Christ. That means just like that branch is remaining, just to remain remain in Christ. तो हमें देखिए इसलिए बुलाया गया है जैसे कि लिखा हुआ है यूहन्ना का 15वां अध्याय के 3 वचन में कि हमें मसीह में बने रहना है, जैसे कि वो जो टहनी है उसके पेड़ में ही बने रहता है, लगे रहता है वैसे ही। When we abide in Christ, the sap, which is the Holy Spirit, flows to us, जब हम मसीह में बने रहते हैं तब पवित्र आत्मा जो कि पोषण है वो हमारे अंदर बहता है, making us fresh, fruitful, and we can serve Jesus Christ with that strength. और हमें ताजा बनाता है, हमें ज्यादा फलवंत बनाता है, जिसके द्वारा हम मसीह की सेवा कर सकते हैं। Many times I thought that branch is speaking to me. When a person is full of fruits, that is an indication. Just as that branch is full of fruits, it bends low to the balcony. When a person is really full of fruits, that person is truly humble. That's the reason why he is fruitful. तो ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार वो टहनी जो है वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। जब वो टहनी में जो है वो कैरी जो है बहुत ज़्यादा लगा हुआ रहता है, तब वो एकदम नीचे की ओर झुकता है। वैसे ही जब एक व्यक्ति जो है ज़्यादा फलवंत होता है, फलों से भरा हुआ होता है, उतना ही वो नीचे की तरफ आता है, बहुत ही नम्र होता है। What happens is when at present there is no fruit in that branch, it is above that balcony. I mean, above that level, it stands quite above, which means when we are fruitless, that is a picture to us that there is quite a lot of pride in us. तो देखिए अभी जो टहनी है उसमें कोई भी फल नहीं लगा हुआ है, वो खाली है, इसलिए वो बालकनी से हमारी जो बालकनी है उससे बहुत ऊपर है, उसमें कोई फल नहीं है। वैसे ही हमारे जीवन में भी जब कोई फल नहीं होता है तो हम ऊपर की तरफ रहते हैं, बिना फल के रहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर बहुत घमंड है। Another thing that branch teaches us is I'm not making any effort to produce any fruit. It is effortlessly producing so many fruits. और एक चीज़ जो वो टहनी सिखाती है वो ये है कि मैं कोई प्रयत्न नहीं करता हूँ फल उत्पन्न करने के लिए, बिना कोई मेहनत के प्रयत्न के ही वो उसमें फल आ जाते हैं। Jesus said in John chapter 15, I'm not going to that portion because of lack of time. It's written there, without me, you can do nothing. जैसे कि यीशु ने कहा यूहन्ना का 15वां अध्याय के 3 वचन में, वहां पे कहा गया है कि मेरे अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे बिना। That means when I don't abide in Christ, I can bear zero fruit. इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं मसीह में नहीं बना रहता हूँ, तब मैं कोई भी फल उत्पन्न नहीं कर सकता।
Now let's turn to Romans chapter 8. It's written, there is no condemnation for those who are in Christ. अब अभी हम जाएंगे रोमियो के 8वें अध्याय में। वहां पे लिखा हुआ है पहला अध्याय, तो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। And he says, the law, the spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. और यहाँ पे कहा गया है कि क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। See, what we have to remember is there are two laws in operation in all of our life. A person who is born again. तो हमें इस बात को याद करना है कि एक व्यक्ति जिसने नया जन्म पाया है उसमें दो व्यवस्था होता है। One is the law of sin and death, which pulls him down. एक जो व्यवस्था होता है पाप और मरण का, जो मृत्यु का, जो उसे नीचे की ओर खींचता है। The other is the law of the spirit of life, that law of the Holy Spirit which gives life, which pulls me up. और दूसरा है जीवन की आत्मा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें रोशनी देता है, वो हमें ऊपर की ओर खींचता है। रोशनी ने life, it gives life to us. सॉरी Yeah. दादा, जो हमें जीवन देता है वो हमें ऊपर की ओर खींचता है। So many times, to take a very simple example, you might have heard about Airbus 380, which is a double-decker huge aircraft. तो हम एक उदाहरण ले सकते हैं, एक बहुत बड़ा सा एरोप्लेन है जिसका नाम है एयरबस 380, राइट ब्रदर? Yeah, 380. 380। It is said that the tail of that aircraft, its height is almost up to 8-story building. तो कहा गया है कि वो जो एरोप्लेन है उसका जो पूंछ जो है उसकी जो उसकी ऊंचाई जो है वो 8 मंजिल के इमारत के बराबर है। It's a huge aircraft. बहुत बड़ा सा एक एरोप्लेन है वो। When we see it in the ground, we'll be amazed to think how it will fly in the air. तो जब हम उसे जमीन पर खड़ा हुआ देखते हैं तो हम ऐसे सोच के बहुत ही चकित होंगे कि वो कैसे इतना ऊपर उड़ सकता है, इतना बड़ा। But there is the law of gravitation that pulls it down. परंतु एक जो आकर्षक शक्ति है जो उसे नीचे की ओर खींचता है। But there is also another law which is called the law of aerodynamics, which makes it float in the air. परंतु एक और व्यवस्था है, नियम है जिसके द्वारा वो जो है हवा में, वो जो हवा है उसकी ओर उड़ सकता है। In the same way, we may look into our life, we can see certain things like anger maybe, or lust, or maybe jealousy or pride, which are huge lusts which can really pull us down. तो हमारी जीवन में भी इसी के समान हम देख सकते हैं कि गुस्सा हो सकता है, या तो फिर घमंड हो सकता है, और भी कुछ कई बातें हो सकती है जो हमें नीचे की ओर खींच सकता है। But there is another law, the law, what is written here, law of the Holy Spirit which gives life, which can pull us up. परंतु दूसरी एक व्यवस्था है जो यहाँ पे दी गई है, जो कि पवित्र आत्मा का जीवन है, जो आत्मा के जीवन के द्वारा हमें वो ऊपर की ओर खींच सकता है। But when we read verse 2, chapter 8, verse 2, it's written, the law, the spirit of life in Christ Jesus. So again, that phrase comes. This law, the Holy Spirit, which gives life, is available in Christ to all believers. जब हम दूसरे वाक्य में यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह में, तो यहाँ पे जो व्यवस्था है जो मसीह में है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था। So to every believer, this Holy Spirit which gives life is available. तो हर एक विश्वासियों के लिए ये जो पवित्र आत्मा जो जीवन हमें देता है वो सबके लिए मौजूद है। So when we abide in Christ, Holy Spirit of life flows to us, which makes us fruitful and fresh and useful for the Lord and for others. जब हम मसीह में बने रहते हैं तो पवित्र आत्मा की ये जो जीवन है वो हमारे अंदर बहता है, और हम जो है सभियों के लिए फलवंत हो जाते हैं, सभियों के लिए उपयोगी होते हैं। But apart from Jesus, that means if we remain away from Christ, nothing can be produced from us. यदि हम मसीह से दूर हो जाते हैं तो हमारे अंदर से कुछ भी नहीं उत्पन्न हो सकता। I want to tell you, even one bad thought, one bad word, one harsh word is enough to separate us from Christ. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक गलत सोच, एक गलत बात, एक गलत चीज भी जो है हमें जो है मसीह से अलग कर सकता है। That is why we have to immediately repent, quickly repent, and
if we quickly repent and return to Christ, then we can be in Christ. इसलिए हमें जल्दी से ही पश्चाताप करना चाहिए, मन फिराना चाहिए और प्रभु में वापस आना चाहिए। यदि हम जल्दी से फटाफट से मन फिराकर प्रभु में आते हैं तो ही हम मसीह में बने रह सकते हैं। So to be in Christ does not mean that I all the time live an victorious. That means there is no sin in my life. No, that's not the meaning. It really means that even if I fall, I quickly get up, repent, and get back to Christ. That means I come back to the relationship with Jesus Christ. मसीह में रहने का अर्थ ये नहीं होता है कि मैं लगातार एक जयवंत जीवन जी रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि यदि मैं गिरता भी हूँ तभी भी, तो मैं जल्दी से उठकर वापस प्रभु के पास, मसीह के पास वापस आता हूँ, मसीह में बने रहता हूँ और वो जो रिश्ता है वो बरकरार रहता है। But if I fall and say morning, if I fall to some angry words, but if I don't reconcile it, ask forgiveness, wait till evening, then it's impossible for me to bear any fruit in Christian life. मान लीजिए यदि मैं सुबह गुस्सा करता हूँ और फिर बाद में उस चीज़ के लिए मेल मिलाप नहीं करता हूँ, क्षमा नहीं माँगता हूँ, शाम तक वैसे ही रहता हूँ बिना क्षमा माँगे, तो मैं मसीही जीवन में एक फल लाने वाला जीवन नहीं जी सकता। Just like a child, if he falls in the morning, if he lies down like that till the evening, the child will never walk. वैसे ही जैसे कि एक बच्चा अगर सुबह गिर जाता है और शाम तक वही जगह पे वो पड़ा रहेगा, तो वो बिल्कुल भी चल नहीं पाएगा। The secret of that child walking is it gets up quickly. और एक बच्चा चलने का रहस्य ये होता है कि वो गिरते ही जल्दी से उठ जाता है वहां So से। here we say when we are in Christ, the encouragement from Jesus Christ flows to us. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब हम मसीह में होते हैं तो मसीह की ओर से जो प्रोत्साहन है वो हमारे तक बह के आती है। That is the thing that that is the thing that enables us to give encouragement to our wife, children, to other brothers and sisters. तो वही एक चीज है प्रोत्साहन है जो हमें प्रोत्साहन देती है कि हम अपने बच्चों को, हमारे जो बच्चे, हमारे जो पति हैं, पत्नी है, उनको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं उसके द्वारा। When we are in Christ, consolation of love, God's love, comforting love of God flows to us. और जब हम मसीह में होते हैं तो परमेश्वर का जो प्रेम है, जो सांत्वना देने वाला जो प्रेम है, वो हमारे पास बह के आती है। You know, we read in Romans chapter 5, verse 5, it's written, the love of God is poured out in our heart by the Holy Spirit. जैसे हम पढ़ते हैं रोमियो 5वें अध्याय के 5वें वचन में कि परमेश्वर का प्रेम जो है हमारे मनों में उंडेला जाता है। We read in 2 Corinthians chapter 1, verse 3, there's a phrase is written of God, Father of mercies, God of all comfort. और हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसके 3वें वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सॉरी, दया का पिता। Father of mercies, God is described as Father of mercies and God of all comfort. दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर। And it's written, it's He who comforts us in every affliction, every trial and difficulty that we go through, that we can comfort others with the same comfort with which we ourselves are comforted. तो यहाँ पे कहा गया है कि वो हमारे सब क्लेशों में हमें शांति देते हैं, और जब परमेश्वर हमारे क्लेशों में, हमारी मुसीबतों में वो हमें शांति देते, सांत्वना देते, उसी सांत्वना के द्वारा हम दूसरों को भी शांति और सांत्वना दे सकते हैं। Another thing we read is fellowship of the Holy Spirit. और दूसरी बात जो हम पढ़ते हैं वो ये है पवित्र आत्मा के साथ की संगति। I want to tell you that just think of that fellowship among God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and that we can enter into that fellowship with the triune God. तो मैं आपको कहना चाहता हूँ जो संगति होती है पिता, परमेश्वर पुत्र और जो पवित्र आत्मा है, उनकी जो संगति होती है, हम भी उस संगति में एक सहभागी हो सकते हैं। When we are in that fellowship, we are in fellowship with all those who walk in light. जब हम उस संगति में बने रहते हैं, तब जितने भी लोग ज्योति में चलते हैं, उनके साथ हमारी संगति होती है। And we read in 1 John chapter 1 verse 4, it is that fellowship with the triune God that makes us full of joy. Our joy is made full. और हम देखते हैं पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 4 वचन में कि जब हम उस संगति में बने रहते हैं, तभी परमेश्वर की वो भरपूरी की आनंद हमारे अंदर होती है। I want to tell you, wherever presence of God is there, there is fullness of joy.
मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां पे भरपूरी का आनंद होता है। When fullness of joy is lacking in our Christian life, there is an indication that there is some problem in that fellowship with Jesus Christ. जब हमारे जीवन में भरपूरी का आनंद नहीं होता है तो वहां पे हमें ये संकेत मिलता है कि हम यीशु मसीह के साथ की संगति में नहीं हैं। But the good news is we can rectify it, we can return, we can repent. And again, times of refreshing, as we read in Acts chapter 3, verse 19, times of refreshing from the Lord can come back to us. पर अच्छी खबर ये है कि हम उसमें से मन फिरा सकते हैं, वापस लौट सकते हैं, परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। तब जो ताजगी की जो दिन है वो वापस आ जाएंगे। And we read in chapter here, the next thing is affection. Affection means fondness. और दूसरी बात हम यहाँ पे पढ़ते हैं वो है प्रेम, सहभागिता। Affection, no, प्रेम। what? So we can see that God is so fond of us, we can be fond of others. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत ही प्रेम रखते हैं, वो चाहते हैं हमें, वैसे ही हम दूसरों से भी प्रेम रख सकते हैं। Another is compassion, mercy to others. और God दूसरी is so merciful to us, which makes us compassionate to other people. और दूसरी बात ये है करुणामय होना। परमेश्वर हमारे ऊपर इतना करुणा दया करता है, इसलिए हम भी दूसरों के ऊपर दया कर सकते We हैं। read in verse 2, Paul is telling, make my joy complete, being of the same mind, maintaining the same love, united in spirit, intent on one purpose. यहाँ पे पौलुस दूसरे वचन में कहते हैं फिलिपियों के 2:2, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। You know what we have to remember is unity between brothers, or in the family, unity between husband and wife is not because of, say, both two brothers or husband and wife sitting long time and talking to each other. That is not the way unity is brought about. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एकता होता है वो या तो फिर दो भाइयों के बीच में या तो फिर पति पत्नी के बीच में जो एकता होती है वो होता है। ये ऐसा नहीं है कि पति पत्नी बैठकर लंबे समय तक बात कर रहे हो, वो एकता नहीं है। Say these two hands are working in so great fellowship, not because no, I just hold these two hands like this. That is not the secret. तो ये दो हाथ जो है मेरे एक साथ मिलकर काम करता है, तो इसका रहस्य ये नहीं है कि मैं एक साथ इसको रख सकता हूँ, ये रहस्य नहीं है उसका। Both hands are connected to the head. दोनों They obey the instruction from the head. They submit to the head, which makes these two hands work in such coordinate fashion. तो ये जो दो हाथ है वो सर से जुड़ा हुआ है और उसकी अधीनता में रहता है, और उसके अधीन में होकर सर जो भी कहता है वो सहभागी होकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। So when there is, when that same mind is not there, same love is not there, that we are not united in spirit, that is an indication that there is some problem in our relationship with Jesus Christ. यदि वही एक ही प्रेम नहीं रहेगा, वही जो एकता नहीं होगा हमारे बीच में, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ के रिश्ते में कुछ तो ही गड़बड़ी है। Now we can come to verse 3. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind, let each one of you regard one another as more important than himself. तीसरे वचन की ओर आएंगे। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। We can see that the greatest two enemies of unity and harmony in the church is these two things, selfishness and pride. तो हम देख सकते हैं कलीसिया के अंदर की एकता और सुखी रहने के जो विरोधी होते हैं वो ये दो चीजें होती है, वो होता है झूठी बड़ाई और स्वार्थीपन। See, selfishness is so deep rooted in us. We are extremely selfish people. देखिए जो स्वार्थीपन है वो हमारे अंदर इतना ज्यादा जड़ पकड़ चुका है कि हम बहुत ही ज्यादा स्वार्थी होते हैं। And pride is another thing which is so deep rooted in us. और घमंड जो है दूसरी चीज है जो हमारे अंदर बहुत ज्यादा जड़ पकड़ चुका है। Initially, we may be proud of certain worldly achievement and worldly glories, but as we grow in the Lord, we can be
there is so much of spiritual pride that can come forth from our life. हो सकता है शुरुआती तौर पर हम जो है दुनिया की जो हमें जो बड़ाइयाँ मिलती है या तो फिर कुछ शोहरत मिलता है उसमें हम घमंड करते होंगे। पर जैसे ही हमें आत्मिक उन्नति मिलती है तो आत्मिक उन्नति के विषय में भी हमारे अंदर घमंड आ सकता है। See, as we heard in the church, it is something like an onion. When one skin is peeled off, there is another inside. When second one is peeled off, there is a third one inside. Selfishness and pride are like that. They are so deep rooted. There are so many layers of this thing in each of us. तो ये जैसे कि हमने कलीसिया में सुना है एक कांदे के जैसा होता है। कांदा जैसे ही उसका ऊपर का परत जो है वो निकाला जाता है तो उसके नीचे और एक परत होता है और वैसे ही बहुत सारे उसके छिलके जो है निकलते जाते हैं वैसे ही। और ये जो घमंड और जो स्वार्थीपन है वो हमारे अंदर इतना ज्यादा जड़ पकड़ा हुआ है। About selfishness, I some time back I heard of a comic strip of, you might have heard about Dennis the Menace. तो इस जो स्वार्थीपन है उसके विषय में मैंने एक कॉमिक देखा था जो कि टेनिस मेनिस के बारे में आपने सुना होगा। It's the story goes like this. One day, Dennis is a small boy. तो ये कहानी ऐसे जाता है, डेनिस जो होता है छोटा सा लड़का होता है। His older sister is bringing to him a plate where there are 2 cakes. तो उसकी जो बड़ी बहन होती है वो एक प्लेट में 2 केक लेके आती है। One is a big one, the other is a small one. एक जो केक होता है वो बड़ा टुकड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है। And Dennis was about to take that bigger piece. और जो डेनिस होता है वो बड़ा जो टुकड़ा है वो लेना चाहता है। No, sister said, see, this is extremely bad. You should have good manners. You should always take the good manners is you should always take the smaller piece. और उसकी बड़ी बहन बोलती है कि देखो ये गलत है, ऐसा स्वभाव तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। अच्छा स्वभाव ये होता है कि हमेशा तुम्हें जो है छोटा जो टुकड़ा है वही उठाना चाहिए। You know what he did? He took that plate from her and then she offered that same plate to her. और देखो बच्चे ने क्या किया, उसने वही बर्तन वही प्लेट अपने हाथ में लिया और अपने हाथ में से उसकी दीदी के सामने उसने रखा वो। You know, now she will be forced to take the smaller piece so that he can get the bigger one. तो अब क्या होता है कि उसे जो है जबरदस्ती छोटा सा टुकड़ा उठाना पड़ेगा ताकि ये जो बच्चा है इसे बड़ा टुकड़ा मिल जाए केक का। This is our nature. Wherever we are, we want the biggest piece of cake, biggest piece of chicken, and wherever we can grab, we want to grab. देखिए ये हमारा भी स्वभाव होता है कि हम जहाँ कहीं भी होते हैं हमें हमेशा बड़ा स्थान, बड़ा चिकन, बड़ा जो चीजें हैं वही चाहिए होता है। हम उसे जो जबरदस्ती ले लेते हैं। See, what we read here is do nothing from selfishness and empty conceit. देखिए यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो। See, pride is another thing which is so deep rooted in us. देखिए जो घमंड होता है दूसरी बात है जो हमारे अंदर बहुत जड़ पकड़ा हुआ है। We know about Nebuchadnezzar who, when he made that wonderful Babylonian empire, हम जानते हैं नेबुकदनेस्सर के विषय में कि जैसे उसने बाबुल की बड़ी साम्राज्य का निर्माण किया था उसने। all the wonderful palaces and the hanging gardens and so many wonderful things. और उसने बहुत बड़े-बड़े महल वहां पे बनाए और टांगा हुआ जो बगीचा है वो सब कुछ उसने बनाया। And he said to himself, all this are made by myself, for myself, by my glory, for my glory and to myself. तो उसने ये सारी चीजों को देखकर बोला कि ये सारी चीजें मैंने अपनी महिमा से बनाई है, अपने लिए बनाई है और मैंने ही बनाई है। We know that incident where the voice from heaven came, that he is transferred to, he became like a animal. He was taken away from the kingdom. He went to the forest. He began to eat grass like animals.
तो हम इस कहानी को जानते हैं कि जैसे ही वो ये सब कुछ बोलता है तो स्वर्ग में से आवाज आती है और वो जो है पूरा उसका जो रूप है वो जो है पूरी तरीके से बदल जाता है और वो जंगल की तरफ जाता है। जंगल में जो है घास वगैरह खाने लगता है, वो एक जानवर जैसा बन जाता है। After 7 years, he lifted his eyes to heaven and he acknowledges that God is in control of everything. 7 वर्षों के बाद वो अपना जो सिर है ऊपर की ओर उठाता है और अंगीकार करता है कि परमेश्वर ही है जो सारी चीजों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। He says that he is able to humble everyone who is pride. और वो कहता है कि परमेश्वर इतने योग्य है कि वो जितने भी लोग घमंडी होते हैं उन सबको वो नम्र बना सकते हैं। He says that God considers every man as nothing. और वो कहते हैं कि परमेश्वर हर एक मनुष्य को कुछ नहीं है वैसे समझते हैं। We have to remember that statement always. तो ये जो Lord, वाक्य Lord, है हमें I am हमेशा nothing. That means I am zero. तो ये जो वाक्य है हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक शून्य हूँ। Whatever be our achievement, whatever be our worldly achievement or spiritual achievement, whatever we are zero because apart from God, we cannot do anything. हम जो कुछ भी हासिल करते हो, दुनिया में कुछ भी हासिल करते हो, आत्मिक रीति से कुछ भी हासिल कर सकते हो, परंतु हम परमेश्वर के सामने कुछ भी हम कर रहे हो, हासिल कर रहे हो, पर हम परमेश्वर के सामने शून्य हैं। As is written in 1 Corinthians 4:7, who regards you as superior? जैसे कि लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 7वें वचन में कि और Who तेरे पास regards you as superior? और तुम्हें कौन ऐसा बड़ा बना रहा है? What do you have which you did not receive? और तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं मुझसे नहीं मिला है? We have to remember that every single thing in our life we have received from the Lord. तो हमारे जीवन में हमें हमेशा याद रखना होगा कि हमारे जीवन का हर एक चीज जो है हमने प्रभु से ही पाई है। If you have received it, why do you boast as if you have not received it? और अगर तुम्हें ये सब कुछ मिला है तो ऐसा घमंड क्यों करते हो जैसे कि तुमने नहीं पाया? And we read in verse 3, he says, do nothing from selfishness or empty conceit or pride, but with humility of mind, let each one of you regard one another more important than himself. और तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। This is a very important secret of Christian life. We have to regard everybody more important than ourselves. मसीही जीवन का ये सबसे बड़ा रहस्य है कि हमें सभियों को अपने से अच्छा समझना है। See, it's not written we have to consider others more spiritual than us, no, but we have to consider others more important than us. ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि हमें दूसरों को अपने से ज्यादा आत्मिक समझना है, पर हमें दूसरों को अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण समझना है। That means, say for example, in wife-husband relationship, each one have to regard others are more important. और जैसे कि एक पति पत्नी का रिश्ता होता है उसमें भी एक दूसरे को जो है ज्यादा महत्वपूर्ण समझना है। That means in every consideration, I want to consider my wife more important. तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी मैं सोच रहा हूँ उसमें मुझे मेरी पत्नी के बारे में उसको ज्यादा महत्वपूर्ण समझना है उस विषय में। Same way in the church, we have to consider every other brother and sister more important than ourselves. वैसे ही कलीसिया में भी हर एक भाई या बहन को जो है हमसे ज्यादा हमें महत्वपूर्ण समझना है। We can read in Romans 12 verse 10. हम पढ़ सकते हैं रोमियो 12वां अध्याय उसका 10वां वचन में। We read, be devoted to one another in brotherly love, give preference to one another in honor. यहाँ पे कहा गया है भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। It's written in the margin, outdo one another in showing honor. और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आदर करके एक दूसरे से बढ़ चलो। We also read in Romans 15 और हम पढ़ते हैं रोमियो उसके 15वां अध्याय में verse 2, let each of us please his neighbor for his good, to his edification. हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करो। We can see that in Jesus Christ. हम इस बात को यीशु मसीह में देख सकते हैं। He was God वो when he परमेश्वर was थे on earth, जब उस पृथ्वी पर थे, but he took the form of a slave and he
became like he did the work of the person who is doing the lowest caste job, washing the feet of his disciples. तो उन्होंने एक दास का स्वरूप लिया, जैसे कि एक व्यक्ति एकदम निचले स्तर का काम करता है, वैसे अपने शिष्यों का पैर धोना जैसा उन्होंने वो काम किया। There we can see that he was considering his disciples not more spiritual than himself, but more important than himself. तो वहां पे हम देख सकते हैं कि वो अपने शिष्यों को जो है अपने से ज्यादा आत्मिक नहीं समझ रहे हैं, परंतु अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। You can see in verse 4, do not merely look out for your own personal interest, but also the interest of others. चौथे वचन में हम देख सकते हैं फिलिपियो 2:4, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करें। Now, that family has got heavenly spirit, where, for example, the husband is looking at the wife and he is thinking, how can I please her? How can I, for him, she is more important than himself. तो ऐसे एक परिवार के अंदर एक स्वर्गीय आत्मा होता है, जहाँ पे एक पति जो है अपनी पत्नी की ओर देखता है और सोचता है कि मैं इसे कैसे प्रसन्न करूं, और वो उसकी पत्नी को ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है। And the same way, wife in relation to the husband. और वैसे ही पत्नी अपने रिश्ते के साथ, अपने पति के साथ जो रिश्ता है उसमें भी वैसे ही। And if children also can have that spirit, there is real heaven in that house. अगर बच्चों के अंदर भी यही आत्मा होगी तो वो घर के अंदर सच का वास्तविक एक स्वर्ग होगा। But where each one is looking and thinking of his own importance, his own gratification, we can say in the same house there is hell. और यदि हर एक जन एक ही घर के अंदर अगर अपने ही इस बारे में सोच रहा हो, अपनी ही जो महत्व है उसके बारे में सोच रहा हो, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि उस घर में एक नरक जैसा है वो। We can see in verse 5, chapter 2, verse 5, have this attitude in yourself, which is also in Christ Jesus. हम देख सकते हैं फिलिपियो 2:5 में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। That's a tremendous verse. बहुत बड़ा एक वचन है ये। Wherever we are, imagine we are in the bus, we are in the train, we are in the house, we are in the church. This one verse can really help us have that attitude which was in Christ Jesus. तो ये जो वचन है बहुत ही बड़ा वचन है। ये यदि हम ट्रेन में हो, बस में हो, बाहर हो, घर में हो, जहां कहीं भी हो, ये वचन जो है हमारी बहुत बड़ी सहायता कर सकता है, जो कि लिखा हुआ है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसे ही हमारे अंदर That भी। means how Jesus will behave in that situation, that's the way I have to behave in that situation. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यीशु उस परिस्थिति में बर्ताव करेंगे वैसे ही मुझे भी बर्ताव करना है। Say for example, if there is a problem in the home, उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि एक घर में समस्या हो रही हो कोई। imagine there is misunderstanding in the home or in the church. मान लीजिए कि घर में या कलीसिया में कोई गलतफहमियां हो गई हो। The answer to that problem is have the mind of Christ Jesus. Have this mind which is also in Christ Jesus. और उस समस्या का समाधान ये है कि जैसे मसीह जैसा जो स्वभाव है, जैसा मन है वैसा हो, जब मसीह में रहने वाला एक स्वभाव हो। How Jesus will behave, that's the way I should behave. जैसे मसीह यीशु होते कैसा बर्ताव करते, उसी तरह मुझे भी बर्ताव करना है। Just think of, I've heard this example. Just think of a village where, say, maybe a village where all the people are usually in most of the villages, they don't know how to live in a clean surrounding. तो एक गांव के बारे में सोचते हैं। अधिकतर गांव में जो है एकदम साफ सुथरा कैसे रहना है, आसपास की जगह को साफ कैसे रखना उन्हें पता नहीं होता है। Imagine a rich person wants to come to that village and teach them cleanliness. और कल्पना कीजिए कि एक अमीर व्यक्ति जो है वो गांव में आना चाहता है और उस गांव के लोगों को कैसे साफ सुथरा रहना है वो सिखाना चाहता हो। Now imagine he's taking some class in the Zoom. He can tell some theories, but they won't get any true lessons in cleanliness. देखिए, मान लीजिए कि वो जूम के अंदर उनको सिखा रहे हो, वो यहाँ पे जो है पढ़ने के रूप में उन्हें सिखा तो सकते हैं, परंतु वास्तविकता में साफ सुथरा कैसे रहना है वो उन्हें अच्छे से बता नहीं पाएंगे। But in the same way, imagine that person is living in a big hotel and comes in between to that village and teaches them
cleanliness, that also will not help. और ये भी मान लीजिए कि वो जो अमीर व्यक्ति है बड़े से एक होटल में आके रहते हैं और वो इस गांव में कभी-कभार आकर उन्हें साफ-सुथरा सफाई से कैसे रहना है वो आकर सिखाते हैं, तो उससे भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। But if he comes to that village, lives among them, he takes a house on rent, lives among them, and if he can teach them and he can invite everybody in that village to come to his home and see how he lives, how he uses water, how he boils water, how he cooks everything, and how he keeps his house neat, and if he can become an example like that, that is the best demonstration by which everybody can learn cleanliness. तो ये कल्पना कीजिए कि वही व्यक्ति, अमीर व्यक्ति अगर वो गाँव में आकर वो घर लेते हैं और वो घर में रहकर जो है उन्हें सिखाते हैं और उन सारे लोगों को अपने घर में बुलाते हैं और दिखाते हैं कि वो कैसे रहते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, कैसे पानी को उबालते हैं और कैसे उनका घर पूरा साफ-सुथरा रहता है। वो देखकर उस उदाहरण के द्वारा जो है उन लोगों को अच्छी तरह वो सिखा पाएँगे कि घर और आस-पास की जगह को कैसे साफ-सुथरा रख सकता है, उनके लिए बड़ा उदाहरण होगा वो। That is what Jesus did to us. He came just like us and taught us the way to live so that he becomes a good example to us. तो यही प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए किया, वो हमारे ही रूप में स्वरूप में इस पृथ्वी पर आए रहे और हमें सिखाया कि हमें कैसे जीना है और वो हमारे लिए बहुत अच्छा एक उदाहरण बने। And that is what I should become to other people. I should become an example to other people. तो यही मुझे भी होना है, मुझे दूसरों के लिए एक अच्छा आदर्श उदाहरण बनना है। Just want to read this verse and close. 2 Corinthians 8:9. दूसरा कोरिन्थियों 8 उसका 9 वचन पढ़ के समाप्त करना चाहता हूँ। For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that you through his poverty might become rich. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। So when we look at Jesus, how he was selfless, how he was humble, that is the glory which we can see and which by the Holy Spirit can slowly bring into our own life humility and unselfish life. जब हम प्रभु मसीह की ओर देखते हैं, यीशु मसीह की ओर देखते हैं कि वो कैसा निस्वार्थ थे और कैसे नम्र थे और उस महिमा को जब देखते हैं, जो पवित्र आत्मा जो है उस महिमा के द्वारा हमारे जीवन में भी वही निस्वार्थता और वही दीनता लेके आ सकता है। Thank you, sister, for wonderful translation. थैंक यू ब्रदर।